مسیح یسوع کے بابرکت جلالی اور فتح مند نام میں تمام مسیحی بہن بھائیوں کو میری طرف سے سلام۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے دکانداروں کے بارے میں دوبارہ، اور آج ہم جس حوالے کی بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے یوحنا کا 4 باب، ٹھیک ہے جی، اس کی 6 آیت سے لے کے تقریباً کوئی 26-27 ایسی آیت ہے، وہاں تک وہ میں ابھی آیت جو پوری لکھی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اور آڈیو بھی لگا دوں، تو آپ اسے سنیں اور اس پہ غور کریں ذرا۔ اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا، چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے، جس نے ہم کو یہ کنواں دیا اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ عورت نے جواب میں اس سے کہا کہ میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں، یہ تو نے سچ کہا۔ عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خرسطس کہلاتا ہے آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ ہاں جی، تو آپ نے سنا، آپ نے دیکھا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ بائبل جو ہے وہ تمام زبانوں میں ہمارے پاس اویلیبل ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کوئی عربی یا باقی زبانوں میں نہیں ہے، جیسے ہمارے باقی لوگ جو ہیں وہ ان کو نالج اسی لیے نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ٹرانسلیٹ چیزیں نہیں ہیں، اور ہمارا کلام، خدا کا کلام کوئی ایسا کلام نہیں کہ خدا کی باتیں کسی سے چھپائی جائے۔ خدا تو چاہتا ہے کہ ہر انسان کو جو ہے پتہ چلے کہ میں نے اس کے لیے کیا حکم دیے ہیں اور وہ اپنی زندگی کو کس طرح بچا سکتا ہے۔ تو یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ اگر دوسرے بندے کو پتہ چل جائے گا تو اس پہ سوال کرے گا۔ اس پہ بھی ایک ویڈیو ہے، میں ایک بہت پرانی ویڈیو ہے، وہ بھی آپ کو لگا کے بتاتا ہوں۔ تو آپ نے ذرا سے پڑھا تو آپ نے دیکھا کہ وہ سامری عورت کا ذکر ہوتا ہے اس میں۔ وہ سارے چیزیں ہونے کے بعد جو اصل جو آیت ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ مسیح اس کو کیا جواب دیتے ہیں کہ اے عورت، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، نہ تم اس پہاڑ پہ نہ یروشلم میں پرستش کرو گے، بلکہ باپ کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں گے۔
ठीक है। इसीलिए इसका एक आगे हमें और हवाला मिलता है। मसीह कहता है कि तुम्हारा बदन खुदा का मक़दस है। फिर पौलुस रसूल इसकी बड़ी अच्छी तरह से वजाहत करते हैं रोमियो में कि जिस तरह हम सब जो हैं बहुत सारे लोग मिलके मुख्तलिफ लोग जितने भी दुनिया में लोग हैं तो हर किसी के मुख्तलिफ खुदा ने मुख्तलिफ रूह दी हुई है लोगों को कि हर कोई मुख्तलिफ तरीके से खुदा की सताइश और तमजीद करता है और अपने बहन भाइयों को मुख्तलिफ तरीके से समझाता है। जिसको खुदा ने जितनी जिस तरह की रूह दी है, ठीक है जी, किसी को मौजज़ों की, किसी को नबूवत की, मुख्तलिफ रूह हैं, ठीक है जी। जिस तरह बदन में बहुत सारे अज़ा हैं मुख्तलिफ काम करते हैं, इसी तरह रूह के भी काम मुख्तलिफ हैं। तो वो सारी रूहें मिल के फिर वो बदन बनता है। तो बेसिक जो वजह है वो बात करने की आपसे वो ये है कि देखें बाइबल जो है वो हमें कोई कारोबार करने की नहीं देती है सलाह या चर्चेस बनाने की नहीं, बल्कि रूहें जीतने की बात करती है कि आप रूहें किस तरह जीतेंगे, किस तरह मसीह की कलीसिया को बढ़ाएंगे। अब मसीह ने इसीलिए हमें पाकरू का जो नज़ूल था उसके शागिर्दों पे क्यों हुआ था कि जाओ तुम जाके दुनिया में लोगों को अपना शागिर्द बनाओ। तो मेरे भाइयों आप मतलब लोगों को क्या शागिर्द बनाओगे? ये जितने दुकानदार हैं, बात वहाँ दुकानदारों पे ही आती है। तो आप मुझे ज़रा बताएं ज़रा इन्होंने कितने लोगों को शागिर्द बनाया? इन्होंने कुछ नहीं किया, ये आपको कुछ नहीं बताते। देखें बड़ी ये बात करनी नहीं चाहिए। देखें जब हैकल पे खुदा वो खुश नहीं था, मसीह जब हैकल में जाता है तो उनके जाके वो दुकान है उन्होंने लगाई होती हैं, मुख्तलिफ कारोबार कर रहे होते हैं, तो जाके वो सारी चीज़ें गिरा देते हैं और उन सबको निकालते हैं। तो आज भी जो हैं वैसे ही लोग हैं। मैं आप लोगों से बार बार ये बात करता हूँ कि ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए कुछ भी बेहतर बात नहीं बताएंगे। आप इन लोगों से बिल्कुल मोहतात रहें। और आप लोग फिर वो देखें, हम लोग सारी वो चीज़ें भूल गए। मेरा आप लोगों को बिखेरने का मकसद नहीं है, मेरी सिर्फ कोशिश ये है कि आप लोग इकट्ठे हो जाएं। आप लोगों को ये सारे हवाले निकाल निकाल के बताने का मकसद है कि यार आप लोग खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाएं, अपनी अपने बच्चों का, अपनी नस्लों के बारे में सोचें खुदा के वास्ते। अगर आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे, आप बाखुदा यकीन माने जिस किसी इंसान को भी बिब्लिकली नॉलेज है, जो समझता है खुदा के कलाम को, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सुनी सुनाई बातों पे आ जाते हैं कि यार वक्त अखीर है, आखिरी ज़माना है, बहुत केयरफुल रहें। आपके सारे मसलों का हल सिर्फ खुदा में है और किसी चीज़ में नहीं। और आप लोग कोई गवर्नमेंट से आप लोग इस तरह डर रहे हैं, भाई हम कोई गवर्नमेंट से कोई लड़ नहीं रहे, किसी गवर्नमेंट से, या हम इस मुल्क में कोई इंतशार नहीं फैला रहे, ना हम फैलाना चाहते हैं, ठीक है। हमारी बहुत सिंपल और सादी सी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कर सकते हैं कि जी हमें इस मुल्क में नहीं रहना, हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर नहीं है इस मुल्क में, हमें हर तरह से सताया जाता है, हमें हर तरह से डराया जाता है। मैं भी एक और वीडियो है वो जो लगा के आपको बताता हूँ कि वो शायद कनाडा में कोई प्रीस्ट हैं, तो वो किसी यूनिवर्सिटी के बाहर, वो बहुत उनकी वीडियोस वगैरह देखता हूँ मैं, तो वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह अक्सर रोड्स वगैरह पे वो प्रीचिंग वगैरह करते हैं। तो उनको एक कोई मुस्लिम खातून होती हैं, तो वो उनसे रिलीजियस कुछ सवाल कर रहे होते हैं, तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाती है। मतलब वो इतनी एग्रेसिव हो जाती है कि उसको कहती है तो स्टूपिड है, तो ये है, तो वो है। यार तुम हमें कहते हो कि बाइबल चेंज हो गई, हमारा तो कोई रिएक्शन नहीं होता। तो उसको जिस तरह से फिर वो पास्टर जो थे, जो भी वो खुदा का बंदा था, वो उसने इतने अच्छे तरीके से उसको जवाब दिया। उसने बोला देखो भाई गलत तो कुछ भी हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप भी गलत हो सकते हो, हम दोनों गलत हो सकते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपके जो एक्शंस होते हैं ना वो बताते हैं कि आप क्या हो। आप में तहम्मुल, या खुदा परस्त जो लोग होते हैं ना, कहने को तो लोग कहते हैं कि इस्लाम बड़ा पीस रिलीजन है, तो भाई कोई पीस नहीं है। आप उस खातून की वीडियो देखें, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि यार मतलब बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं, जाकिर नायक तक, मतलब इनके जितने भी वो हैं उनके आप कभी देखो तो वो बनता ही नहीं है, तहम्मुल है ही नहीं। आप दूसरे को गलत कहते हो, वो आपसे
उस चीज़ का सवाल जवाब कर रहा होता है और आप उस पे भी एग्रेसिव हो जाते हो, आप मतलब इतने ऊपर से आ रहे हो कि आपको, भाई अगर आप मुझे गलत कह रहे हो, आप मुझे चोर कह रहे हो, ठीक है, अगर मैं उसका जवाब नहीं दूंगा ना तो इसका मतलब है मैंने चोरी की है। ये आप लोग अपने बच्चों को बताएं, ठीक है। अगर आप फ़र्ज़ करेंगे, अगर आप मुझे चोर कहते हो, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा या मेरे पास उसकी सफाई के लिए कोई बात नहीं है मेरे पास, इसका मतलब मैंने चोरी की है। और अगर मैंने चोरी नहीं की, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये देखिए, आप ये जो सारी बात कर रहे हैं ये गलत है, मैंने चोरी नहीं की। तो आप भी बताएं कि बाइबल चेंज नहीं हुई है, बाइबल चेंज करती है, बाइबल चेंज करती है, जिंदगी बदलती है। जिसमें एक मैं गुनाहगार हूँ, मेरी भी जिंदगी बाइबल ने बदली है। तो कहने का मकसद ये है कि आप इन चीज़ों को पढ़ें, खुद पढ़ें। मैं आप लोगों से बार बार ये कहता हूँ, आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं है। आप खुदा यकीन माने, खुदा आपके साथ है। अगर आप खुदा से सीधे ताल्लुक़ रखेंगे तो खुदा आपको हर चीज़ बताएगा, हर चीज़ समझाएगा। आप किसी मज़ार पे जाके या किसी मुर्दों से किसी से कुछ नहीं मांग रहे, किसी बुत से नहीं मांग रहे। तो अभी मैं आपको मज़ीद जो है, जो हमारे ये मुसलमान भाई हैं, इनके रिलीजियस के बारे में तो कुछ चीज़ें आपको 2-3 हवाले बताता हूँ मैं। बल्कि मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा, मैं जल्द बनाऊँगा मैं वीडियो, वो आप ज़रूर देखिएगा। चलें, खुदा आप सबके साथ हो। खुद पढ़ें, खुद समझें और अपने बच्चों को समझाएं और इकट्ठे हो जाएं प्लीज़। इन तमाम ये जो अभी भी आप 50-50, 60-60 लोग होके घूमते हैं ना घूमें, क्योंकि असल आपको बांटने वाले जो है ना, हमारे अपने लोगों ने हमें बांटा है। ये पादरी, ये फादर, ये जितने दुकानदार हैं, इन सब ने हमें बांटा है। हमारी बर्बादी की असल वजह ये लोग हैं। जिस तरह जब बनी इसराइल से, मैंने आपको पहले भी बताया था, मूसा बनी इसराइल को मिस्र से लेके आ रहा था, उस वक़्त भी उसके बीच में ही लोग थे जो कहते थे कि यार हम तो वहाँ बड़े खुश थे, बड़े खाते पीते थे। आज भी हमारे दरमियान ऐसे लोग हैं जो अपने मफाद के लिए हैं। प्लीज़ खुदा का खौफ करें, इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे से मिल के रहें, एक दूसरे को समझाएं। हो सकता है आप मुझे कोई अच्छी बात बता दो, या आपका भाई मुझे कोई अच्छी बात बता दें, या मैं आपको कोई अच्छी बात बता दूँ। एक दूसरे की तरबियत करें और अपने बच्चों की भी तरबियत करें। खुदा आप सबके साथ हो। खुदा हाफिज़।